वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पर्युवासाय मथये वन्दामि तिकुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पर्युवासाय मथये वन्दामि। जो कोई संवर लेना चाहे विद्युत क्या कैसे द्रव्य से 5 आश्रव सेवन का पचन शेष संपूर्ण लोक प्रमाण काल से जब तक नहीं पाले तब तक भाव से कर्ण योग से एक योग से संवर के पचखान 10 बनते पड़ी वामिंदामी गरियामी अपाणम भूसी। Now we would like to invite Sushmita aunty for today's session. तो हम शुरू करते हैं अभी। ओके आंटी। अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र everybody. So we will start with Naukar mantra. All of us can chant, right? Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayatyanam, Namo Uvachayanam, Namo Loe Sauva Saugunam, Eso Panchanamukaro Sauva Pavapanasano, Mangalanam cha Sauvesim, Padamam Havai Mangalam. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Uvachayanam, Namo Loe Sauva Sahunam, Eso Panchanamukaro Mangalanam cha Sauvesim, Padamam Havai Mangalam. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Uvachayanam, Namo Loe Sauva Sahunam, Eso Panchanamukaro Sauva Pavapanasano, Mangalanam cha Sauvesim, Padamam Havai Mangalam. कहाँ तुम? जय जिनेंद्र everybody. जय जिनेंद्र। आज हम लोग उत्तरायण सूत्र का अध्ययन 10 से शुरू करेंगे। 9 हो चुके हैं। पहले तो I thank everybody for giving me this laugh. Whether I will make any difference or not, I don't know. But since Shweta told me Monday that I should do the Swadhyay on Dhrum Patrak, and I opened the book and Samayam Goyam Mahapamaye, my week has been tremendous. So I thank everybody. आपका होगा कि नहीं देखते हैं, लेकिन it has been an amazing week. Every moment I kept on thinking of हम जाएंगे and you will see how important. I think this is by far the most important sutra, Samayam Goyam Mahapamaye. और हमें especially, people like us, we really don't have much time. And and I cannot stress the importance, but Bhagwan himself has stressed the importance. So we will start with the Uttarayadhyana Sutra. So, I'm going to share the screen and I have some slides which I want to go over. So before I start, this Adhyayan 10 जो है, उसका नाम है ध्रुम पत्रक. उसमें पहली तीन जो गाथा है, वो मैं just overview देती हूँ. First 3 gathas are about मनुष्य भव अने उसका जो आयुष्य है वो कितना क्षण भंगुर है, ये बारे में है. तो 4th गाथा वो मनुष्य भव की दुर्लभता बताता है. और फिर गाथा 5th to 15 almost up to 17
स्थावर और त्रस्काय, एक इंद्रिय वगैरह, पंचेंद्रिय, ये सब की काल स्थिति बताकर भगवान बता रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मनुष्य भव। और फिर श्लोक आएगा 21, एक्चुअली 19 से ही शुरू होता है अप टू 27, नहीं सॉरी 16 से शुरू होगा। 10 दुर्लभता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, and all the दुर्लभ संयोग that we have gotten in this bhav as a manusya. So भगवान उसमें से 4-5 लिस्ट करते हैं। और फिर 27 onwards, I think it is about, from 27 to 21 to 27, it is about how this body is getting old. और वृद्धावस्था जो सेटिंग हुई है, तो उसके कुछ लक्षण है और उसका इंपॉर्टेंस दिखा के अगेन समयम गोयम महापमाये। और फिर 31 और 31 to 37 इज एक्चुअली फॉर साधु भगवान जिन्होंने संयम ग्रहण किया है, और हम कितना हार्ड वर्क करके उन लोगों ने संयम ग्रहण किया है। तो भगवान इज टेलिंग देम हाउ टू इवन बी मोर कॉशियस, and all 37 as if he's only addressing it for Gautam Swami, but हमें पता है गौतम स्वामी तो मनोपर्य ज्ञानी थे, तद्भवी मोक्षगामी थे। ये सब भगवान ने हमारे लिए एवरी गाथा में समयम गोयम महापमाय, एवरी गाथा में, एंड दैट इज ज्ञानी पुरुष, स्पेशली केवल ज्ञानी कभी भी कोई चीज 2 बार नहीं बोलते unless it's important, क्योंकि if they do not say it, they don't want to waste any time. Only the facts are presented towards in front of us. So the point I want to stress here is that in 37 gathas, Bhagwan has said samayam goyam mahapamaya. So I would take that for me, Susmita, समयम सुस्मिता महापमा, कुछ भी समय, एक समय का मात्र भी वेस्ट मत करो। So I'm going to bring up some slides I tried to make and then we will go through it. Is everybody able to see the screen? Slide आई नहीं है, Not yet. Slides आई नहीं है अभी? नहीं। So I thought I did that. Okay, now I think you should see, Yeah, right? now You guys can see? Very good. yes. Okay. So we will start with the first gatha. So Shweta, are we expected to finish the whole Adhyayan today? Yes, auntie. Okay, all right. So I will have to speed up, or maybe let's see how we can handle it. Hopefully I will be able to cover everything. 5-10 minutes up and down, auntie, is okay. Okay. So Bhagwan, उत्तराध्यान सूत्र सब लोगों को पता है, last 48 hours of भगवान. So the 10वां अध्ययन मैं ले रही हूँ, उसका नाम है द्रुम पत्र. द्रुम means झाड़, हिंदी में भी झाड़ी बोलते हैं, I think, or tree. Yes. Or a patra, right? Mm-hmm. So very
भगवान ने बोला है तो फिर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर आवर इन्फॉर्मेशन इट्स अ वेरी एप्ट कंपैरिजन दैट भगवान हैज डन. सो द फर्स्ट गाथा हम लेते, मैंने बोले फर्स्ट 3 गाथास आर अबाउट मनुष्य का आयुष्य और उसकी वेराइटीज है. आप लोग के पास शायद मुझे पता नहीं है इफ यू हैव द बुक इन फ्रंट ऑफ यू, but I was not able to find Uttarayan Sutra where I could copy and paste, and I didn't have enough time to type up the whole slok. So my apologies for that. मैंने सोचा शायद आप लोगों के पास जो बुक है तो आप गाथा देख सकते हैं. Smita, when we have sent everybody PDF, so people might have at least gone through it. Oh, they might have it, right? Okay, great, Yeah, excellent. Yeah, all PDF. सबके पास PDF है, so ये chapter का है सबके पास. Yeah. Excellent, excellent. So you guys can look at the first gatha. So ये जो picture है, I try to point it out. So what happens actually? दिन और रात चले ही जाते हैं, कभी रुकते नहीं. दिन हुआ तो फिर रात होगी, रात हुआ तो फिर दिन होगी. क्या हुआ अभी? There are no leaves on the trees, but soon spring will set in and green leaves आएंगे. 6, 7, 8 महीने रहेंगे, फिर क्या होगा फॉल में? They will all turn yellow and they'll fall down. Will there be a break or change in this? No, never. ये साइकिल चलता ही रहता है. ऐसे ही पहली गाथा में भगवान ने बोला कि मनुष्य का जो आयुष्य है वो भी ऐसे. ધ્રુમ પત્રક નું એવું છે. શું થયું? અધ્રુમ જ છે. तो मनुष्य का आयुष्य भी ऐसे ही है. हम देखते हैं almost every day you hear somebody passed away, and for some maybe for a little bit it might affect us, but then we go back. Even though we know we are going to live, I don't think it is sunk in enough, and that's why Bhagwan decided to remind us the first thing that listen, मनुष्य भव जाने वाला ही है, रहने वाला नहीं है. सब लोग जाते हैं, वैसा आप भी जाओगे. किसी ने बताया थी कि सब लोग जब फ्यूनरल में जाते हैं तो इंडिया में तो वो ऐसे लकड़ी के ऊपर बॉडी को रख के उसको जलाया जाता है, राइट? तो सब लोग खड़े रहते हैं आजू बाजू. तो किसी ने ऐसा बोला कि ये जो सब लोग खड़े हैं ना, ये they are all in line. It will be their next it will be their turn. So that is what भगवान यहाँ बता रहे हैं. So it's extremely important कि we remember this every day. I'm going to move on to the second slide. So 1, 2, and 3. Then I want to again discuss a little bit. So just stay with me. So the second गाथा में भगवान क्या बता रहे हैं कि the dew drop, morning dew drop on a leaf or on a grass. How long does it last? कितनी देर रहता है वो? Especially if you can see ये जो drop है at the end of the grass, ये झाकल बिंदु कितनी देर तक इसे रहेगा? It will stay there for some time, but even it is definitely वो गिरने वाला ही है. बराबर है ना? So भगवान बता रहे हैं दूसरी गाथा में कि मनुष्य जीवन भी ऐसे ही क्षण भंगुर है, मोमेंटरीली है, जाने वाला ही है. एंड मुझे ये रोज नहीं 24/7 आई शुड हैव दिस इन माय माइंड कि प्रोग्रेस हो ही रहा है. और एक दिन जैसे ये dew drop will fall down, my life will also end. क्या है ये जो आयुष्य है वो क्या है? ट्रांजिएंट है, मूविंग है, स्थिर नहीं है. ऐसे लगता है कि रहेगा लेकिन है नहीं. ये बात भगवान स्ट्रेस करें. तो गाथा 3 में कि
ये जो शॉर्ट लिव हमने देखा अभी गाथा 2 में कि आयुष्य कितना शॉर्ट टर्म है, कितना छोटा है, ड्यू ड्रॉप का है, ऐसे ही हमारा है। क्या रिस्पेक्ट, इन which respect Bhagwan is calling this, like, somebody might say, well, if I live 80 years, 90 years, it doesn't feel like it's like a Jakal Bindu. No, I'm going to explain that to you in comparison to. It is in comparison to. क्या है उसकी comparison? कि अनादि काल से ये संसार चालू है और आत्मा कितनी ओल्ड है, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, ये बिगिनिंग लेस है। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस, मिलियन शब्द आई एम यूजिंग जस्ट सो दैट वी गेट सम आइडिया, लेकिन है तो सागरोपम और कल्पकाल की बात। अनंत शब्द इसके लिए यूज, अनंत सागरोपम बीत चुके हैं और ये चालू ही रहता है, हमारी यात्रा चालू ही है। सो कंपेयर टू दोज अनंत सागरोपम, दिस 80-90 years इज व्हाट इज इट? कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक अ ड्यू ड्रॉप। जो जाकल बिंदु हमने देखा, दिस इज हाउ स्मॉल इट इज। इट्स टोटली नेग्लिजेंट, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, इसीलिए उसको क्षण भंगुर बोल दिया। और ये जो क्षण भंगुर मनुष्य है, उसमें क्या है? अनादि काल से मिथ्यात्व चालू है, विपरीत मान्यता चालू है। और क्या किया है जीव ने? मोर कर्मबंध, ज्यादा 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 कर्मबंध चालू ही है और कर्म के उदय आते ही रहते हैं। और वो जो कर्म के उदय आते हैं, इससे क्या हो रहा है? ये सारा जीवन बहुत विघ्न से भरा हुआ है। टुडे माइट बी गुड एंड वी ऑल नो, हमें कुछ नहीं पता कल क्या आएगा। द नेक्स्ट मोमेंट समथिंग माइट कम अप, क्योंकि अरे ये तो ऐसे तो अच्छा सब चल रहा, अब क्या हो गया? या कर्मों का उदय कब आएगा हमें कुछ पता नहीं है। मोनीय कर्मों की 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की स्थिति है, कभी क्या उदय में आ जाएगा पता नहीं। उदय की तो बात छोड़ दें, उसको ध्यान में रख के अभी मुझे क्या करना है? मुझे ऐसे ही विघ्न युक्त जीवन जीना है, where every so often I have to deal with some issues. और जो इश्यू आते नहीं है तो what are they? एक्चुअली उसमें कंप्लीट निराकुलता तो रहती नहीं है, देर आर आकुलता। और आकुलता का क्या होगा? शायद वेरिएशन, कोई मंद आकुलता होगी और कोई सीवियर होगी। सीवियर को हमने विघ्न बोल देंगे और मंद आकुलता को हम क्या बोलेंगे? हम उसको पहचानते नहीं। लेकिन भगवान कहते आकुलता ही है, वो दुख ही है। तो उसको ये मनुष्य भाव जो मिल गया है, कितना छोटा है हमने देखा, बहुत ही छोटा है कंपेयर टू द टाइम वी हैव स्पेंड। और अभी सम्यक दर्शन नहीं होगा तो जो टाइम हम स्पेंड करेंगे, तो इतना छोटा है। और उसमें काम क्या करना है? इतने सारे भवों का, इतने सारे सागरोपम के जो कर्म इकट्ठे किए हैं, वो कर्म को इतने छोटे समय में, वो झाकल बिंदु के जितने छोटे समय में हमें सब डिलीट करके मोक्ष पहुंचना है। इट्स अ बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ा काम है। और फिर हम क्या कर रहे हैं? और तीनों गाथा में भगवान क्या, लास्ट लाइन क्या है? समयम गोयम मा पमाये। तीनों गाथा में कि क्षण मात्रों भी प्रमाद नहीं कर। So I want to just, this might be a repeat, but I thought it is very apt for these 3 gathas and the 4th one that's coming in. तो मैं ये मधु बिंदु का अपने शास्त्र में उदाहरण आता है। तो यहाँ क्या है? ये इसको रूपक बोलते हैं। श्वेता, हिंदी में भी रूपक बोलते हैं? यस आंटी, रूपक या दृष्टांत। दृष्टांत, नाट्य, एग्जाम्पल। ये दृष्टांत नहीं, ये रूपक है। रूपक आई मीन एनालॉजी। एनालॉजी है, मीनिंग दिस is going to relate to my life. So that's why it's a analogy, रूपक, comparison. तो क्या है इसमें?
ये जो आदमी है यहाँ तो ब्रांच पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ओरिजिनली क्या हुआ, एक मुसाफिर है ये आदमी, एक मुसाफिर है जो भागता जा रहा है, बहुत भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। क्यों भाग रहा है वो? क्योंकि उसके पीछे ये जो पागल सा नहीं, पागल हाथी उसके पीछे दौड़ रहा है, और ये जंगली हाथी है, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है, उसको भागना ही पड़ेगा, उसको हाथी से भी फास्ट भागना पड़ रहा है। और भागते भागते, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है ये हाथी से, तो वो भाग रहा है, और भागते भागते अचानक, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अचानक, एक्सीडेंटली, दिस वर्ड अचानक और एक्सीडेंटली प्लीज रिमेंबर, क्योंकि मैं वापस उसको रेफरेंस करूंगी अदर साइड्स में। अचानक उसके हाथ में ये इतनी ऊपर वाली ब्रांच, डाली उसके हाथ में आ गई एक्सीडेंटली। लुक हाउ टॉल इट इज, और वो तो कितना छोटा है, यहां तक का ही वो, somehow ये डाली उसके हाथ में आ गई। कैन यू गाइस फिगर आउट हाउ? देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस रियली, थिंक अबाउट दैट। somehow accidentally, आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इतनी टॉल ब्रांच है, कैसे आएगी? क्या ट्री विल बेंड डाउन एंड से हियर फॉर दिस, whatever happened accidentally, हम भी नहीं सोच सकते हैं, logically we cannot even think, and that is extremely important, that's why I'm stressing on it. उसके हाथ में आ जाती है, so what he does, he holds on to it, and now he's high above the हाथी उसको पकड़ नहीं पा रहा है, and it's a mad हाथी। तो वो हाथी क्या कर रहा है ये जो झाड़ है ना, हाथी तो स्ट्रांग है, ये झाड़ को विगरसली हिला रहा है, बहुत जोर से हिला रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट दैट मैन। तो वो बहुत जोर से हिला रहा है। अब ये सोचता है कि इतना जोर से हिला रहा है तो मैं शायद गिर गया तो क्या होगा। सो वो पहले नीचे देखता है कि ओ मैं गिर गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो नीचे क्या है, उसके नीचे कुआं है, वेल राइट, एक कुआं है, और कुएं में उसने देखा तो 4 बड़े मगरमच्छ और पाइथन, 4 सर्प मुंह खोल के वेटिंग टू, इफ ही फॉल्स वेटिंग टू ग्रैब हिम, उसको पकड़ने झीलने के लिए तैयार पड़े हुए हैं चारों। तो बोलता है नो दिस इज नॉट सेफ, और कहीं कुछ देखना पड़ेगा। उसकी ये बाजू तो हाथी है, वहां तो वो जा नहीं सकता है। तो फिर वो थोड़ा ऊपर देखता है, ये क्या देख रहा है उसको ये 2 उंदर है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। उसको ये 2 उंदर दिखाई दिए। वो 2 उंदर क्या कर रहे हैं पता है? कैन यू सी हियर? ये जो 2 उंदर है, ये जो ब्रांच है उसको काट रहे हैं स्लोली ना। उंदर कैन ओनली डू सो मच, सो वो उंदर उसको काट रहे हैं। थोड़ा काम तो हो चुका है अभी, तो उसने सोचा कि ये जब काम खत्म करेंगे तो क्या होगा, मुझे सिर्फ जाना पड़ेगा नीचे, राइट, और कुछ देखते हैं। तो फिर उसने ऊपर देखा, तो ये क्या है, उसके ऊपर बी हाइव्स, मधुपुड़ा है, और बहुत सारी मक्खियां बैठी हुई है, और बड़ा वाला है ये। और ये जो हाथी झाड़ को, ट्री को जो शेक कर रहा है, इसलिए ये सब जो मधुमक्खियां हैं वो क्या हो गई, अब डिस्टर्ब हो गई है, और सब आके एज यू कैन सी ऑन हिज बॉडी उसको चटके लगा रही। वो बोलता है ये भी बात अच्छी नहीं है। जस्ट देन उसने ऊपर ये बाजू देखा, किसी ने उसको प्रेम से बुलाया। ये कौन है? कोई विद्याधर अपने विमान में जा रहे थे, 2 विद्याधर। तो एक ने दूसरे को बोला कि ये आदमी बहुत ट्रबल में है, चलो हम उसको हेल्प करते हैं। तो
उसने क्या किया, सो वो उन लोगों ने डिसाइड किया हम उससे हेल्प करते हैं। तो उसके पास जाते हैं और उसको बुला के बोलते हैं, भाई देखो मैं अब तुम्हें मेरा हाथ दे रहा हूं, गिव मी योर हैंड, आपका हाथ दे दो, मैं ऊपर उठा लूंगा। जस्ट देन क्या होता है, वो जो ऊपर मध पूड़ा था ना, वो मध पूड़ा में से एक ड्रॉप मध गिरा और वो कहाँ गया, उसने जो मुंह खोल के रखा था उसके जीभ पर पड़ गया। एंड देन दैट टेस्ट गुड ही सेड, उसने सोचा तो बहुत टेस्टी है। तो फिर विद्याधर ने उसको वापस बुलाया कि प्लीज हरी अप, ये अभी ब्रांच टूटने वाली है, तुम नीचे गिर जाओगे, मैं तुम्हें मेरा हाथ दे रहा हूं, कम एंड लेट मी हेल्प यू गो अप। You know what I would do? I would grab the hand and run, right? I'm sure all of you will do the same thing. ये मुसाफिर ने क्या किया, उसको ये बोल रहा है विद्याधरों को कि आप रुक जाइए ना, एक थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे I just want another taste of that another drop when it drops in my mouth. और आप सोचिए ये बात सही अच्छी है नहीं है ना? That's not very smart, right? ये क्या कर रहा है? तो फिर विद्याधर ने बहुत ट्राई की, लेकिन ये जब छोड़ी ना अपनी जिद, उसको तो दूसरा मत लेना ही है। फिर इवेंचुअली विद्याधर गेट्स टायर्ड एंड वो चले जाते हैं। तो ये हमारी स्क्रिप्चर की बात है, आपने बहुत बार सुनी होगी, बट इट इज वेरी एप्ट फॉर व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू से हियर। सो आई थॉट आई विल गो विथ इट। एंड कैन आई नाउ जस्ट टेल यू द एनालॉजी, उसकी कैसे रूपक बनाया है। ये जो आदमी है, वो जो भाग रहा था, वो कौन है? मैं और आप है। ये जो आत्मा है, कर्म से बंधी हुई, अज्ञानी, अनादिकाल से क्या कर रही है? जस्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। क्यों? ये जो मैड हाथी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? संसार। संसार का एक्चुअली मीनिंग ही है सरकना, which is never stable, is always moving, it's fluid, it always moving। और फिर to keep up with that संसार क्या करना पड़ता है? हमें भी उसके साथ दौड़ना पड़ता है। और हम क्या कर रहे हैं? दौड़ते ही जा रहे हैं। कैसे दौड़े? संसार मैंने बोला था ना, 4 गति, राइट? देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। ये 4 गति में हम दौड़ते ही जाते हैं सर्कल में, क्योंकि ये भागी रहा। अभी जो 3 गतियां हैं, बहुत टाइम उन 3 देव, नरक और तिर्यंच में, सब टाइम उसमें हम घुमा रहे हैं। और फिर क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, आई सेड एक्सीडेंटली, एंड आई वांटेड यू टू रिमेंबर, एक्सीडेंटली, अचानक, अनायास हमारे हाथ में मनुष्य भाव आ गया, क्योंकि मनुष्य भाव बहुत बहुत दुर्लभ है हमें मिलना, बहुत ही दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? आई हैव सम एग्जांपल्स, वी विल गो थ्रू देम, बट राइट नाउ, और बिकॉज ऑफ दुर्लभता, और ऐसा कुछ मैंने किया नहीं कि दैट अफोर्डेड मी मनुष्य भाव। शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र में लिखा है कि ये अचानक, जैसे किसी ने, somebody was yawning, किसी ने कोઈએ બગાસું ખાધું અને એના મોઢામાં પતાસું પડ્યું. I mean, how rare is that? Something like that. अचानक जैसे इतनी ऊंची डाली इसको मिल गई। कैसे मिली? आपने सोचा क्या झाड़ ने उसको पकड़ लिया? क्या हुआ? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे ही ये दुर्लभ मनुष्य भाव हमें मिल गया है। So this is nobody else but me. मुझे मिल गया है दाली रूपी मनुष्य भाव, एंड मैं क्या कर रही हूं? मेरे नीचे क्या पड़ा है? जैसे ही हमने 3 गाथाओं में देखा, ये जो मनुष्य भाव है, जीवन है, उसका क्षण भंगुर आयुष्य कैसे जाएगा? वेरी फास्ट, लाइक अ
ड्यू ड्रॉप ऑन अ ग्रास, इतना फास्ट जाएगा तो भी वो खत्म होगा, फिर क्या होगा? व्हाट आर माय ऑप्शंस? मेरा ऑप्शन क्या है? नीचे 4 गति है, ये जो 4 सर्प है ना, दीज आर 4 गति, जो 4 पाइथन मुंह खोल के खड़े हैं। यहां से सम्यक दर्शन के बिना ये जीव निकलेगा तो कहां जाएगा? वापस 4 गति के चक्कर में चला जाएगा। मोक्ष पंचम गति तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं। फिर ये जो व्हाइट एंड ब्लैक माइस है ना, उंदर है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाइट है वो दिन, दिवस, और ये ब्लैक है वो रात। दिवस और रात, दिन और रात कंटिन्यूअस गोइंग ऑन। और क्या कर रहा है वो? ये जो मेरा आयुष्य है, इट्स ईटिंग अवे, राइट? मेरे दिन कम होते जाते हैं। एवरी डे आई एम लूजिंग 1 डे, एवरी डे मेरा एक दिन का कम हो गया है, आई एम लूजिंग इट। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग डे और नाइट। ऊपर देखते हैं, ये क्या है? मधपुड़ा है ये, और ये सब बीज है। सो ये क्या है? अनादिकाल से इकट्ठे किए हुए मेरे कर्म, एंड गुड और बैड, इन द फॉर्म ऑफ दिस मधमाखी। और ये माखियां क्या कर रही है? दे आर एवरी मधमाखी इज स्टिंगिंग मी। क्या कर रही है? मुझे चुभती है, चुभ रही है। और ये क्या सिग्निफाई करता है? ये जो मधमाखी का चुभना है वो सिग्निफाई करता है कि कंटिन्यूअस आदि व्याधि और उपाधि से मेरा जीवन भरा हुआ है। कुछ ना कुछ ट्रबल आती ही रहती है और ऐसे मुझे चुभती ही रहती है। दैट इज व्हाट दिस इज सिग्निफाइंग। जस्ट देन द विद्याधर इन द प्लेन, विद्याधर विमान में बैठ के आ गए और बताए, क्या बताया मुझे? कम ऑन, लेट मी हेल्प यू, नाउ यू गाइस कैन फिगर इट आउट। विद्याधर के कौन है? तीर्थंकर भगवान और सदगुरु। सदगुरु जो मुझे भगवान का मार्ग समझाएंगे, वो सदगुरु है। वो क्या बोल रहे हैं कि देखो ये तुम्हारी परिस्थिति है सारी, let me help you pull up. I can take you to moksha, I can show you the path to moksha, I can save you from these 4 gatis, you will not fall in that well. मैं तुम्हें बचा सकता हूं, तुम आ जाओ। और ये जो मधु बिंदु है ना, वो what does that represent? ये जो विषय आसक्ति है, विषय कसाय, विषय की 5 विषय, सेंसेस, 5 सेंसेस, उसके 23 विषय, सब्जेक्ट्स। वो जो विषय में हमारी जो आसक्ति है, ये मधु बिंदु, द कंफर्ट ऑफ माय बॉडी, कि ये कंफर्ट है, मुझे घर नहीं छोड़ना है, खाने में मुझे कंफर्ट है, खाना मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे वैराग्य की ओर नहीं जाना है। ये कौन रोकता है मुझे? बिकॉज आई सी दिस नॉट रियल ट्रू प्लेजर इन ऑल दिस विषय। तो वो मधु बिंदु है। और बिकॉज मुझे ये टेस्ट है नहीं, लगता है कि इसमें टेस्ट है, और मैं सोचती हूँ कि ये मुझे बहुत सुख दे रहा है, इसलिए आई एम नॉट लिसनिंग टू तीर्थंकर भगवान और सदगुरु, and just hanging on to this branch. This is the Manusha Bhav branch. And as soon as these guys finish their work, what's going to happen? I'll be back on the road running in संसार। और कहाँ? कुछ नहीं पता। और सम्यक दर्शन के बिना जो ये निकल गया तो कुछ नहीं पता। इसीलिए it is very important कि the first 3 gathas we pay attention to. So this is मधु बिंदु की कहानी है। And the last part of the gatha, all the gathas, what is it? Samayam goyam ma pamayaye. हे गौतम, क्षण मात्रनो पण प्रमाद करवो नहीं।
this is the most important. This is for us, for me at least, which is totally continuously reminding me. क्योंकि क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर नहीं है तो क्या हो रहा है, मेरा जीवन कंप्लीट प्रमाद में ही जा रहा है. समय, यहाँ you can see here the word samayam. तो समय शब्द है, यहाँ क्षण just for, it should be samay because kshan actually doesn't do a justice. So michhami dukkadam, I should have put samay there. Anyway, samay kya hai? Samay is the smallest unit of time. और एक समय में समय क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. और कैसे एक्सप्लेन किया गया है शास्त्र में समय को? एक आंखना पलकारामा कितने समय जाते हैं? असंख्य समय पासिस. कोई जर्जरित, हमने कोई जर्जरित वस्त्र ले लिया और फिर हम, इफ वी आर टाइम टू रिप इट, सो व्हेन वी रिप, you know, one, let's say there were 10,000 threads in this much cloth, right? तो पहले इवन तो 10,000 थ्रेड, लेकिन पहले थ्रेड को तो कट करना होना ही होगा, उसके बाद में दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, तो एक और दो के बीच में असंख्यात समय चले जाते हैं. एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट अनंत, असंख्यात एंड संख्यात इज, बिकॉज दोज आर द वर्ड्स भगवान विल हैज यूज्ड many times in following gathas. तो वो समय है. एक क्षण में तो असंख्य समय जाते हैं. तो क्षण नहीं समय लेने का. और भगवान क्या बोल रहे हैं? एक समय का भी प्रमाद मत करो. एक समय का भी प्रमाद मत करो. So I just want to spend little time on this pramad because 30 out of 37 gathas, Bhagavan said it in 36 gathas. The same thing, samayam goyam mapamaye. So I want to discuss this a little bit. Maybe bring one slide I wanted to. Okay. So the word pramad, there are, you know, many आप लोगों ने प्रमाद सुना होगा. कर्म की बात चल रही थी, करेक्ट? जो कर्म आत्मा के ऊपर आते हैं, उसके आने के कारण जो इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा होता है उसको आश्रव बोलते हैं. आप लोगों ने आश्रव, बंध, आश्रव, संवर और बंध तो सुना ही है, और निजरा, राइट? तो आश्रव जो है उसके कितने मेन रीजंस है? 5, कई जगह पर 4 है. तो 5 कौन से है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग. तो उसमें जो थर्ड वन प्रमाद है ना, उसकी बात यहाँ चल रही है. सो मिथ्यात्व तो अनादिकाल से अज्ञान है. जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा मिथ्यात्व चालू रहेगा. मिथ्यात्व यानी विपरीत श्रद्धा, सम्यक दर्शन यानी प्रॉपर राइट फेथ, प्रॉपर श्रद्धा, बराबर? तो अविरति, दीक्षा वगैरह जो वृत्ति में रहना, और थर्ड वन इज प्रमाद. व्हाट इज प्रमाद? Some of the pictures I'll show you is for you know, regular people, but we are in Swadhyay now. So we need to have a little up. What is pramad? I can say carelessness. I can say carelessness. What happens? जब भी कोई कर्म का उदय आता है, कोई भी पैशंस मीनिंग कोई भी कषाय का उदय आता है, एग्जाम्पल फॉर क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी आके रहा, तो फिर क्या होता है? तब मैं मेरी बिहेवियर चेक नहीं करूंगी. I will act on impulse, on my whatever the kashai is going on at the time. And also, you know, another most important thing that will happen is I will be totally careless about my pure state. Which is my pure state? I am soul. I am pure. और उसके तरफ तो मुझे कोई मेरा ध्यान ही रहेगा नहीं, क्योंकि मेरा उपयोग उसमें से निकलकर ये पैशंस के थ्रू माध्यम से बाहर में चला गया, बाहर में ही घूमता रहता है. तो ये जो अनअवेयरनेस है ना सेल्फ की, मेरे शुद्ध स्वरूप की जो अजागृति है,
वो प्रमाद है। और वो सूक्ष्म से वहां तक हमें पहुंचना है। तो ये जो प्रमाद है उसको if I want to translate into our own daily routine, हमारे daily routine में कैसे हम देखें कि क्या क्या चल रहा है। So for that, so there are actually 15 types of pramad शास्त्र में बताए हैं। तो what are they? As you can see, there are 4 types of विकथा। गॉसिप मीनिंग विकथा। आप लोगों को पता है अतिचार में आता है राजकथा, देश कथा, श्री कथा, भक्त कथा आता है, पता है? So that is gossip, that's vikatha, meaning any katha that is not related to my atma is vikatha. और हमारी our basic talking points are these regarding these 4 things. Women or men, we take both of them. देश के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है, और one of the main and interesting is about food. We spend most of our time talking about these 4 things. What about food? नहीं, मुझे ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, all that is definitely true. What should I make? How should I make? Can I get the recipe? Can I make it more tastier? Any thought process, or of course, then all the action. There's all man, vachana and kaya, mind, body, and speech that goes with the food is known as bhakta katha, right? Raj katha, desh katha, bhakta katha है ना? So these are the 4 type of, उसको भगवान ने क्या बोला है? These are pramad, because it takes me, ये मेरा उपयोग मेरे शुद्ध स्वरूप से निकालकर विभाव दशा में मुझे लाके रख देता है मेरे उपयोग को. That's why these are 4 types of pramad I need to avoid. Then this is the biggest one, 5 senses. 5 प्रकार की senses और उसके 23 विषय subjects, उसके जो 23 विषय है ये also प्रमाद है. और ये क्या करते, because of ये जो विषय है, विषय के लिए मुझे जो आसक्ति है, तो आसक्ति को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, भोगने के लिए और कुछ भी करने के लिए, अराउंड दैट मेरा क्या होता है, मेरा उपयोग अगेन शुद्ध स्वरूप से निकलकर विभाव दशा में घूमता रहता है. एंड कैसे 24/7 टच भी है और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट लेट मी सिट कंफर्टेबली, let me the cold and the heat and this and that, continuously we are involved in this, and it is taking me away from my Shuddha Swarup, because sharir and body are 2 different things. भगवान ने बताया है, right? आत्मा is बहुत different और शरीर different है, उसमें बहुत भेद है. लेकिन मैं अज्ञान की वजह से शरीर को ही मैंने अपना मैं मीनिंग आत्मा मान लिया है, और वहां सब शरीर और उसकी फ्रेंड्स, ऑल द इंद्रिय और इंद्रिय के फ्रेंड्स ये सेंसेस, तो ये सब गड़बड़ होती जाती है. इसलिए उसको ये भी 5 प्रमाद अवॉइड करने के लायक है. और फिर पैशंस, वी जस्ट स्पोक अबाउट पैशंस, कैसे क्रोध मान माया लोग कैसे मुझे विभाव में कंटिन्यूअसली रखते हैं, बराबर है. और फिर स्लीप, नींद, सोने की बात. भगवान क्या बोला? समयम गोयम मा पमाय, एक समय का भी प्रमाद मत करो. और निद्रा को भगवान ने प्रमाद बोला है. महावीर स्वामी, भगवान ने दीक्षा ली, 12.5 वर्ष की उनकी घोर तपश्चर्या. भगवान ने कितनी बार निद्रा ली? भगवान नेवर सेट डाउन. जो शरीर कुछ थक गया होगा और मे बी डोज्ड ऑफ, 48 मिनट्स ऐसा बोलते हैं वो लोग ऑल टुगेदर, कभी, बिकॉज प्रमाद है. भगवान तो अप्रमत गुण स्थानक पर थे, कोई प्रमाद था ही नहीं. द पॉइंट आई वांट टू मेक इज, हाउ मच डू आई स्लीप?
You know, if I'm not getting 5 hours, 7 hours, 8 hours sleep, I'll go to the doctor. You know, मुझे नींद नहीं आ रही है. Can you please give me something? और भगवान ने इसको यहाँ प्रमाद बोल के रखा है. I need to think on this. This is Darshanavanya karma also, you know, affects nidra. And affection. ये तो सोचने वाली बात है. ये मेरा affection, what is it? स्नेह जो मैं बोल रही हूँ, is it my मोह? Or is it actually स्नेह? What's going on? भगवान ने उसको, और कितना टाइम मेरा इसके पीछे जाता है. Affection for somebody, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति. Any of these three. Basically इसमें ही हम घूमते रहते हैं. और ये क्या है? ये भी प्रमाद है, क्योंकि मुझे मेरा उपयोग मेरे शुद्ध स्वरूप से निकालकर क्या करता है? वो बाहर लेके रखता है. So I just, some of the things that will kind of translate some of those, हमने जो 15 types of प्रमाद देखे ना वो, तो you know, how much time does go in watching TV? You know, you will see little kids sometimes, but देरासर इतनी नजदीक है, मीनिंग स्थानक, देरासर, कुछ भी religious part, I would just avoid it. But meanwhile, I'll go for exercise for hour, 2 hours, or walk for so many hours, whatever. लेकिन आत्मा की बात आई तो I will just ignore it. This is where we spend a lot of our time, right? Just get together and have discussion. कुछ भी चलो, कुछ भी गपशप लगाते हैं. क्या गपशप? टाइम है मेरे पास गपशप का? That's what Bhagwan is saying. समयम गोयम मापमाय, एक समय न तू क्षण मात्र बोलू छू, सॉरी, मिच्छामी दुक्कड़म, एक समय मात्र नो पण प्रमाद नहीं कर. How much time goes in this gupsup? Do I have time for gupsup now? Am I done with my work? Where do I want to go? वो जो 4 नीचे पड़े बड़े pythons with their mouth open, do I want to go in that? This gupsup will definitely take me. और ये, boy, this screen बहुत हमारा टाइम बिगाड़ता है ना? और sleep, half of our life goes in sleeping. ये सब प्रमाद है. और जब हमें जो चीज में हमें इंटरेस्ट है, we will do it very interesting. तो फिर तब तो नींद भी नहीं आती और कुछ नहीं होता है, सब अच्छा हो जाता है. करेक्ट? So if I have this interest in religious activity, who can be the judge? I can be judge for myself. और मुझे फिर सोचना पड़ेगा कि ये तो मेरा प्रमाद है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें मुझे बोरिंग. इन एक समय कब खत्म? When will the 48 minutes be finished? And I have a whole battery of things to do. And next 3 hours we go by, and I will not even know that they went by. Meanwhile, 48 minutes was so hard on me. What is it telling me? Lot of pramad I have. And Bhagavad said, एक समय नो पण प्रमाद नहीं करीस. Correct? हम concentrate नहीं कर सकते, वो तो हमारी problem है ही, right? एक माला गिनने को हमारा ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है कि माला में क्यों चित नहीं लगता है, क्यों चला जाता है मेरा माला. तो 5 मिनट 10 मिनट इतनी ही रहती है, फिर भी हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है, हमारा फोकस नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता है? ये भी प्रमाद है. और पचखांड मीनिंग, यू नो, कुछ भी व्रत नियम हम लेते हैं और फिर कभी वो टूट जाते हैं. So this is extremely important. Pramad, Bhagwan said it 36 times to emphasize, and I need to take. कुछ आज याद नहीं रह जाए तो अच्छी चलेगा, लेकिन समयम गोयम मा पमाये, ये तो रोज आना ही चाहिए याद. This will set my life. You know, कुछ भी हम वेस्ट कर रहे हैं तो immediately it will say no, भगवान ने बोला था, and then maybe some of the things will clear up, right? और जो the fourth गाथा is about दुर्लभ मनुष्य भाव. कितनी it is extremely दुर्लभ, impossible to get मनुष्य भाव.
So couple of examples are given here. हमने ये किए हैं पहले. So मैं सिर्फ I'll go through it very quickly. स्वयंभू रमण समुद्र है. You know, if you look at the Jain Bhugol, the final one, the biggest, largest water body according to scriptures, Jain Shastra, उसके जो bottom है ना, उसके ऊपर it is huge. हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते how huge that is. सब जूल्स रत्न पड़े हुए हैं. अब एक रत्न मेरा वो स्वयंभू रमण समुद्र में गिर जाए तो फिर मुझे how will I find it? You know, स्वयंभू रमण समुद्र की भी नहीं बात करें. If I take Pacific Ocean or Atlantic Ocean and something, if one of my jewel drops on in there, what is the probability कि वो मुझे मिलेगा? It is almost impossible to get, and it is impossible to find. I don't even want to say almost. It is impossible. So that is the comparison given. That Manusya Bhav एक बार चला जाएगा, impossible to get it again. Impossible. दूसरा example है कि you know, a nail and a wood. Let's say nail is in Pacific Ocean and wood is in Atlantic Ocean, and they both need to meet each other. What is the probability? Impossible, है ना? Same way, मनुष्य भाव वापस मिलना impossible है. और दूसरा फिगर यहाँ, this figure is showing, ये कौवा है. Kawa is supposed to be very active, you know, continuously moving. So if somebody wants to throw something in their mouth, it's kind of difficult. So what it says, that somebody just happened to drop that, you know, something, a jewel or something, and somehow the crow to get it would be impossible. And this is actually very apt. This last figure, what it shows is that a tree, as you can see the tree, once the tree burns down, झाड़ जल जाता है और फिर जलने के बाद उसकी जो एशिज है एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो गई. तो व्हाट आर द चांसेस कि वो सब एशिज वापस मिल जाए और फिर वो झाड़ वापस हम बना सके? तो बोलते हैं नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है भाई साहब. तो क्या बोला है पता है? That is how impossible it is to get another human life. And that is why ये whole 10वां अध्ययन भगवान ने रखा है. And he is stressing in every गाथा कि ये मनुष्य भाव जो मिल गया है हमें और आपको बहुत दुर्लभ है. हमें ऐसा मिल गया है और हम सोचते हैं कि it might be so easy, I'll get another one. You know, if I अभी नहीं कुछ कर सकूं, नेक्स्ट भाव में कर लूंगी. नहीं, नेक्स्ट भाव में करने की बात नहीं है, क्योंकि ये हमने एक बार देखा था. द्रव्य क्षेत्र काल भाव અને ભૌથી दुर्लभ मनुष्य भाव છે. So I don't want to focus on all 5 of them, but I do need to take one because अभी जो गाथाएं सब आएगी 5 to 17, ये सब है. It is about time. It is about card. Card means time. कि कौन सी योनि में कौन कितना time spend करता है. तो I thought before that I just want to stress one point कि मनुष्य भाव काल थी दुर्लभ छे. मनुष्य भाव काल से भी दुर्लभ है. वो कैसे? कि जो निगोद में, निगोद और मोक्ष, these are the only 2 permanent places for आत्मा को रहने के लिए. ये 2 ही जगह परमानेंट है. कौन सी है? एक तो निगोद और एक मोक्ष. मोक्ष में जाने के बाद फिनिश्ड, और निगोद में अनादि काल से कितने कल्पकाल चले गए, कितने साल निकल गए हैं निगोद में थे. इसलिए उसको भी ऐसे परमानेंट बोल दिया है. निगोद से जीव निकलकर, दैट इज स्थावर,
स्थावर और त्रस, स्थावर मीनिंग जो नहीं चल सकते, वनस्पति काय हम लोग देखेंगे अभी, पृथ्वी काय, पृथ्वी, अप, तेव, वायु और वनस्पति, दीज आर ऑल स्थावर, इमोबाइल जीव, नहीं जो चल सकते। क्या होता है उसमें, वहां तो अनंत काल जीव निकालता है। कौन सा वर्ड है, अनंत, अनंत काल ये जीव निकालता है। लेकिन फिर उसमें से त्रस पर्याय, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक त्रस पर्याय मीनिंग अब वो हलन चलन कर सकता है। तो जो हलन चलन कर सकता है, इसमें आता जीव जब आ जाता है तो उसको क्या बताया है, चिंतामणि रत्न समान दुर्लभ, एकेंद्रियमाथी बेइंद्रियमा आवू, इतना दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न मिलना इजी है, लेकिन एकेंद्रिय से 2 इंद्रिय में आने का इतना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल, दुर्लभ है। एनीवे, पॉइंट हियर आई वांट टू मेक इज, कितना समय मिल जाता है फिर हमें, त्रस पर्याय में, हलन चलन की पर्याय में हमें 2000 सागरोपम का समय मिलता है। और मैंने पहले बोला था हमने कितना टाइम स्पेंड किया है, अनंत अनंत सागरोपम, कंपेयर टू दैट दिस इज ओनली लिटिल बिट। 2000 सागरोपम 2 इंद्रिय में आते हुए, त्रस्काई में आते हुए, और फिर मुझे ये 2000 सागरोपम में अपने आत्मा का उत्थान करके मोक्ष में चले जाना है। मीनिंग एटलीस्ट आई शुड हैव सम्यक दर्शन। मुझे जो ये सम्यक दर्शन नहीं मिला तो क्या होगा, वापस बैक टू वनस्पति, स्थावर और परंपरा से बैक टू निगोद, और फिर वहां वापस अनंत कल्पकाल निकल जाएंगे, असंख्य कल्पकाल निकल जाएंगे, अनंत काल ही बोल सकते हैं। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज जस्ट टू कम इनटू, क्या बोला मैंने, त्रस पर्याय, हलन चलन। फिर हम देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, 2, 3, 4, 5, हम तो 5 है, पंचेंद्रिय है, संज्ञी पंचेंद्रिय है, मन के साथ है हमारे पास। और अब जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, और जब 2000 सागरोपम का समय खत्म होगा तो विल हैव टू गो बैक टू निगोद। तो अभी कितना समय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में जीव निकालता है, ये बात भगवान 5वें श्लोक से आगे करते हैं। Shweta, you will have to tell me when to stop, because as you can see, I think I'm going a little slow. Yeah, भाई आंटी, आज तो शायद पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला ना? नहीं. Yes. We can continue on the next session. Next session. 2 week बाद जो next session होगा, Next session में. Yeah. Yeah, auntie, another 5 minutes is good, auntie. Rest we will continue in next session. अच्छा, okay. All right, no problem. So I just want to touch here, क्योंकि अभी जो गाथाएं आएंगी उसमें अनंत, असंख्य और संख्य शब्द भगवान ने यूज किए हैं। तो अनंत क्या है, अनंत मीन्स इनफाइनाइट, जिसकी there is no beginning and there is no end. As you can see, there is in this figure there is no beginning, there is no end. It just continuously goes on and on and on. तो अनंत जो है 2 प्रकार के रहते हैं, केवल ज्ञान का विषय है, हमारा विषय नहीं है, जो हमारे ज्ञान का वो विषय नहीं है, इसलिए उसको भी अनंत बोलते हैं। और फिर the second one is असंख्य, कि जो हम दरवाजा बंद कर दो, वीडियो गिन चलाऊंगी। नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी, ये जो असंख्य है वो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवल ज्ञान का विषय है। उसमें समझ में आता है कि असंख्यात है और अनंत और असंख्यात में क्या डिफरेंस है। So for our intensive purpose, this is also there. So आपने देखा अनंत, असंख्य, yes, and the next one is संख्यात। मनुष्य कितने हैं, संख्यात मनुष्य क्या है, 10 to the power 29 zeros, 10 to the power 29, वो जो नंबर है वो संख्यात है। संख्यात मीनिंग कुछ भी ह्यूमन और कुछ भी हेल्प लेकर जो गिना जा सकता है उसको संख्यात बोलते हैं, फॉर आवर लर्निंग पर्पस। Shweta, should I take the 5 to 17 or next time? आंटी कितना, 5-10 मिनट में हो जाएगा?
I can try to do that. Okay, fine, auntie. करूँ मैं? Yeah. Yeah, auntie. Okay. So अभी I was talking about स्थावर and त्रस, right? So जो एक इंद्रिय है, ये सब स्थावर है. आप देख सकते हैं पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय एंड वनस्पतिकाय, राइट? ये सब स्थावर है क्योंकि हलन चलन नहीं कर सकते हैं. आपने देखा झाड़ तो कोई चलने वाला है नहीं, राइट? इट्स नॉट मूविंग. सो जो एक एक के लिए भगवान ने एक एक श्लोक दिया है. क्या लिखा है कि ये जो पृथ्वीकाय है, 5वें श्लोक में लिखा है पृथ्वीकाय है, इसमें ये जीव जब जन्म लेता है तो कितनी बार उत्पन्न होता है? इन द सेम थिंग बिफोर इट कम्स आउट ऑफ बीइंग पृथ्वीकाय, असंख्य बार. मैंने अभी असंख्य की आपको डेफिनेशन दी थी. इतनी बार, असंख्य बार वो जन्म लेगा, वापस एंड वापस एंड वापस इन पृथ्वीकाय. आपने देखा? So how long will I spend there? मैंने कितना समय इस पृथ्वीकाय में पसार किया है. और अभी हमने देखा था 2000 सागरोपम, लेकिन पृथ्वीकाय में तो स्थावर है, तो अभी 2000 सागरोपम कैलकुलेशन में नहीं आता है. फिर श्लोक नंबर 6 में भगवान टॉक्स अबाउट अपकाय. यहां भी देखो पानी, बर्फ है, नदी, ये सब दिखाया, बरसात, झाकल बिंदु मीनिंग ड्यू ड्रॉप्स, ये सब एनीथिंग टू डू विथ वाटर बॉडी इज सेम थिंग. उत्कृष्ट से असंख्यात समय, वंस आई एम बोर्न इन दिस आई हैव स्पेंड. और मैंने स्पेंड किए है कि नहीं? कितनी बार जन्म लिया है मैंने, एज अ पृथ्वीकाय, एज पानीकाय, एज अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय. सारा मेन सब टाइम इसमें ही जाता है क्योंकि उसमें अनंत समय चला जाता है. सो फिर 7वें में ऑल्सो हियर इज अग्निकाय. अग्नि में जन्म लेते मैं कितना टाइम यहाँ रहूंगी? मेरा जीव कितना टाइम वहां रहेगा? असंख्यात समय निकलेगा. तब तक आई विल कीप ऑन reborn as Agnikai, reborn as Vayukai. Here also Gatha 8, same thing. I'll be over and over for असंख्यात काल निकल जाता है, and then comes Vanaspatikai. And you think that जैसे ये सब असंख्यात समय में निकल गए, ये भी निकलेगा नहीं. वनस्पतिकाय में ये जीव अनंत काल पसार करे છે. નિગોદ ફોલ્સ અંડર વનસ્પતિકાય. અનંત કાલ પસાર કરે છે કે જેની કોઈ બિગિનિંગ નથી, કોઈ એન્ડ નથી. That is how much time I have spent in a bhindi or potato or any or this or a leaf or a tree or a nigod. Nigod mein to I was there forever. Here is potatoes, and we don't need to go into that. So then let's move on to two sense beings. So two sense being, you can see there is a mobility now. One sense, so far there was no mobility, and that's why how much time was we spent there? Anant and asankhya, infinite and innumerable time हम लोग ने वहां spend किया है. और फिर अब त्रस का मूविंग एबिलिटी मिल गई. रत्नमणि चिंतामणि के समान इंपॉर्टेंट है. I just want to make one point here. If I sit here and I'm thinking, when did I go to Prithvikai or or Vanaspatikai or Apkai, these three? I want to go to Devlok. हम लोग ने एक बार डिस्कस करके चुके हैं कि जो देवलोक में सम्यक दर्शन के बिना हुए, विच एवर सोल विल गो टू देवलोक, सम्यक दर्शन नहीं है वहां. हाँ, लंबे समय रहेगा, लेकिन समय खत्म तो होगा. हम देखते हैं देवलोक का कितना समय है. फिर
सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि देवों को अपने जलाशय, अपने लोन्स और अपने ज्वेलरी में इतनी तीव्र आसक्ति रहती है कि वो आत्मा मर के कहां जाती है? ये 3 में। जिसको ज्वेलरी में ज्यादा, स्टोन्स में ज्यादा अफेक्शन है वो जाएगा पृथ्वी में, और जिसको पानी में ज्यादा अफेक्शन है जाएगा पानी का जीव में। और वनस्पति जिसको लोन, हरियाली, दिस इज वेयर देव एंड अप। और एनी मनुष्य और एनी गति में व्हाटएवर मुझे ज्यादा आसक्ति है वहां जा, और फिर वंस यू गो इन दोज लाइव्स व्हाट हैपेंस, इतना समय निकल जाता है, राइट? और फिर 2 इंद्रिय में आना, इट्स चिंतामणि रत्न समान। कैसे 2 इंद्रिय मिलती है वो भी देखने की बात। भगवान क्या बता रहे हैं गाथा 10 में कि एक बार 2 इंद्रिय में आए तो कितना टाइम पसार होता है? उत्कृष्ट संख्यात टाइम। अभी संख्या आ गई, देयर इज अ लिमिट। रिमेंबर आई सेड 2000 सागरोपम, इतना ही टाइम मिलता है मुझे वंस आई एंटर 2 इंद्रिय, 2000 सागरोपम। मरुदेवा माता के जैसे कोई एक्सेप्शन रहते हैं जो वनस्पति कैसे सीधी संधि पंचेंद्रिय मनुष्य की जन्म मिली। यूजुअली ऐसे ही जाता है, 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, इतना समय पसार करते करते जीव निकलता है। 2 इंद्रिय में ही मेरा संख्या टाइम निकल जाएगा, मेरा 2000 सागरोपम खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? आई विल गो बैक टू निगोथ, अगेन चक्कर चालू। समहाउ कोई पुण्य के उदय से, लेट्स से आई गो टू 23 इंद्रिय, मीनिंग 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, आपको पता है जिसको 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है। सो ये 3 इंद्रिय है। उस 3 इंद्रिय में और 4 इंद्रिय, गाथा 10 एंड 11 एंड 12, ये सब में जीव कितना टाइम स्पेंड करता है? संख्याता, लिमिटेड संख्याता टाइम है। और फिर दरेक गाथा में भगवान ने लिखा है कितना टाइम तेरे जीव ने इसमें स्पेंड किया है। अभी तुझे मनुष्य भव मिल गया है और बहुत सारी संयोगों मिल गए हैं। भगवान की वाणी, उसमें श्रद्धा, वो सुननी मुझे अच्छी लगती है। ये सब संयोग कल रहने वाले हैं नहीं, हमने पहले ही देखा, ऑल द लीव्स फॉल डाउन नो मैटर व्हाट, ये सब संयोग चले जाएंगे और वापस कब मिलेंगे हम कब से देख रहे हैं, एक घंटे से, कि इम्पॉसिबल है, टू मिलने वाले नहीं है। तो समय यम गोयम महापमाये, तुम और पंचेंद्रिय, संधि पंचेंद्रिय में तो हम आ गए हैं अभी। इसमें संधि पंचेंद्रिय में संख्यात नहीं है, उसमें ना 7-8 भव तक एक ही जीव वापस जन्म ले सकता है। ऐसी गाथा नंबर 13 में बताया है। और गाथा नंबर 14 में बताया है देवलोक और नरक गति में। उसमें क्या है? देवलोक में एक भव, फिर दूसरा भव, दूसरी गति में जाना ही पड़ता है। सेम थिंग इज विथ नरक गति। अगेन यू आर नॉट, वन डजंट गेट रीबॉर्न। देव और नरक में वापस जन्म नहीं होता है, दूसरी गति में जाके वापस आ सकते हैं। और वहां कितना, वहां आयुष्य बहुत लंबा है। नरक का मिनिमम आयुष्य 10,000 ईयर्स है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। ये टाइम भी मैंने बहुत बार स्पेंड कर दिया है, बराबर। So I think we can stop here. Now I will be starting with. चलेगा? Yes, auntie. Thank you. વિતરાગની આજ્ઞા વિરુદ્ધ ઓછું અધિક કે વિપરીત બોલાયું હોય તો ત્રિવિધે મિચ્છામિ દુક્કડમ.
Thank you so much, Auntie, for the beautiful explanation and the slides you had shown us. समयम गोयम मा पमाए. आंटी का जीवन भी ऐसा ही लगता है हमें कि आंटी समय मात्र भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे. जो आंटी के रोम रोम रग रग में हमें वैराग्य दिखता है, वैसा ही आंटी ने आज हमें बोल के बताया है. तो वी होप हमारा भी जीवन ऐसा बने और हम भी टाइम का वैल्यू समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, धर्म में लगाते रहें. तो अब हम संवर पाले भाई साहब. हाँ. संवर के पचकान पलाते न फासिन पाल में तेम न कीचम न सोयम नारेमान पालम नवै तस्मिच्छामि दुक्रम. 3 अवकार मंत्र. नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोरे सबसाहुनम. ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सव्यसिम परमं हवै मंगलम. नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोरे सबसाहुनम. ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सव्यसिम परमं हवै मंगलम. नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोरे सबसाहुनम. ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सव्यसिम परमं हवै मंगलम. सुस्मिता बेन मांगलिक बोलो ना. कोई बीजू बोले ना. ओके, कोई सीनियर कोई मांगलिक बोलेगा. सीता जी आप ही कर लो. और कोई बोलना चाहेंगे अपने? नहीं तो नहीं, बोलिए, आप ही बोलिए. ओके. गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धमो मंगलम. चतारी लोकुत्तमा, अर्हंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा, साहू लोकुत्तमा, केवली पणत्तो धमो लोकुत्तमो. चतारी शरणं पवज्जामि, अर्हंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि. अर्हंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा. 4 शरणा, मंगलिक करना, दुर्गति हरना, सुख करना और न शरणा कोई होगा. जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राया, जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम. अब हम अहो गुरुदेव जी महाराज